Okay, now we will see the questions based upon the theorems which we have just studied. Okay, so first few questions will be based upon the first and second theorem. तो पहला theorem क्या था? That a tangent drawn to any point of the circle will be perpendicular to the radius through the point of contact. Okay, और second वाला theorem था the converse of the first one, that a line through the end point of radius and which is also perpendicular will be the tangent of the circle to that point. Okay, so पहला question क्या कहता है? That a point P is 13 meter from the center of the circle. The length of the tangent drawn from P to the circle is 12 centimeter. Find the radius of the circle. Okay, so there is a point P. Let's say this is point P and this is 13 meter from the center of the circle. मान लेते हैं ये हमारे पास circle है और ये इसका center O है. So this distance is given as 13 meter. This is centimeter. Okay, and the length of the tangent drawn from the point P to the circle, मतलब ये वाली distance है 12 centimeter and we have to find out the radius. मतलब O, if this is point B, so you have to find out the distance of OB. Okay, और हमने ये already देखा है कि this radius will be perpendicular to this टेंजेंट, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, मतलब कि ये OPB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. तो मतलब ये कि यहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. तो मैं ये बोल सकता दैट हाइपोटेनस स्क्वायर दैट इज 13 स्क्वायर विल बी इक्वल टू, लेट्स से दिस इज R, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, सो दैट विल बी इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर. Yes or no? Now after further simplification, R square will be equal to 13 square, that is 169 minus 144. Okay, तो मतलब R square is equal to 25. Value of R will be 5 centimeter. Okay, so the radius is 5 centimeter. Okay, now let us see the next question. So that is, find the length of the tangent drawn from a point whose distance from the center of a circle is 25 centimeter and given that the radius of the circle is 7 centimeter. Okay, so find the length of tangent drawn from a point. तो let's say कि this point is P और ये हमारा circle है. Okay, और यहां से एक ऐसे tangent draw करा गया whose distance from the center of the सर्कल, मतलब यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर एंड यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ, इफ दिस पॉइंट इज B, यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ BP. ओके, एंड और रेडियस कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर. ओके, दिस एंगल, इफ दिस इज O, सो एंगल OBP विल बी 90 डिग्री. मतलब क्या कि ट्राइंगल OPB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, तो यहां भी वही बात, आई कैन से कि 25 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर. ओके, सो दैट मीन्स BP स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 49. ओके, तो BP स्क्वायर हो जाएगा 15 माइनस 9 विल बी 6. ओके, फिर यहां पे हो जाएगा 11 माइनस 4 विल बी 7, यहां बचेगा 5. दैट मीन्स BP इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. इज इट क्लियर? तो ये जो टेंजेंट है इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 24 सेंटीमीटर. बात आई समझ में? Now let us see the questions based upon the third theorem. और तीसरा theorem क्या कहता है? That two tangents drawn from the external point will be equal in लेंथ। यही कहता है ना कि अगर हमारे पास एक एक्सटर्नल पॉइंट है जो कि सर्कल के बाहर है
और उससे होते हुए दो टेंजेंट्स अगर हम ड्रॉ करेंगे सर्कल पे, सो लेंथ्स ऑफ बोथ द टेंजेंट्स विल बी इक्वल. दिस इज व्हाट दैट सेज. ओके, तो पहला क्वेश्चन इसके बेसिस पे है कि इन फिगर, जो कि ये फिगर ऑलरेडी दिया हुआ है, इफ AB इज इक्वल टू AC, प्रूव दैट BE इज इक्वल टू EC. ये हमको प्रूव करना है. इफ AB इज इक्वल टू AC, प्रूव दैट BE विल बी इक्वल टू EC. ओके, तो इसको देखते हैं. देखिए, दिस इज अ एक्सटर्नल पॉइंट, दिस इज एक्सटर्नल पॉइंट. ओके, और यहां से इट इज ऑलरेडी गिवन दैट AB इज इक्वल टू AC. AB is equal to AC. ओके, नाउ ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है और AD और AE दो टेंजेंट्स हैं. तो मतलब क्या कि आई कैन से AD will be equal to AF. Okay, reason is tangents from same external point. ओके, ये हो गई ये बात. on and now you can see, see AD will be equal to AF. Now what I will do, from this first equation, if I will subtract AD from both the sides, तो ये पहला वाला इक्वेशन हो जाएगा AB माइनस AD इज इक्वल टू AC माइनस AD, subtracting AD from both the sides. ओके, और AD इज इक्वल टू AF. तो मैं ये बोल सकता कि AB माइनस AD will be equal to AC minus AF from, let's say this is equation second. Okay, so AB minus AD ये हो जाएगा BD और AC minus AF will be CF. ये हो जाएगा, that means BD is equal to CF. ओके, एंड नाउ यू कैन सी कि ये BB एक एक्सटर्नल पॉइंट है और ये दोनों टेंजेंट्स हैं. मतलब क्या कि BE विल बी इक्वल टू BD एंड EC विल बी इक्वल टू CF. EC विल बी इक्वल टू CF क्योंकि ये भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है और ये दोनों टेंजेंट्स हैं. ओके, तो फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस आई कैन से कि BD की वैल्यू CE है, तो दिस इंप्लाइज दैट BE will be equal to CF is nothing but EC is equal to EC. और यही चीज हमको प्रूफ करनी थी. ओके, सो दिस इज द प्रूफ. ओके, तो यहां से हमने प्रूफ करा कि हाउ BE will be equal to EC. ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इन फिगर, तो फिगर हमारे पास ये है, XP and XQ are the two tangents from X to the circle with the center O. Okay, R is the point on the circle. Prove that XA plus AR will be equal to XB plus BR. ये भी बहुत ही easy है. Okay, देखो, these are the two tangents. Okay, from the external point X. तो मतलब कि XP will be equal to XQ. यही होगा ना, क्योंकि एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से दो टेंजेंट जैसे ड्रॉ करे गए, तो ये हो जाएगा ये. अब बताओ, XP कैन बी रिटन एज XA प्लस AP. XA प्लस AP, और सिमिलरली XQ कैन बी रिटन एज XB प्लस QB. एनी डाउट? मैंने ये जो दोनों पार्ट्स हैं इन्हीं का समेशन तो XP और XQ होगा ना रेस्पेक्टिवली. सो दैट इज व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर. एंड नाउ यू कैन सी कि A यहां पे एक्सटर्नल पॉइंट है और AP विल बी इक्वल टू AR. क्यों? क्योंकि ये दोनों टेंजेंट्स है फ्रॉम दिस पॉइंट A. तो मतलब क्या कि AP कैन बी रिटन एज AR. तो मैं वहीं लिख दूंगा AP XA प्लस AP
and this is equal to xb plus bq, and again b is an external point, so bq will be equal to br. okay, तो मतलब ये हो जाएगा xb plus br, and this is what we have to prove. okay, और यही हमको प्रूफ करना था. okay, now let us see the next question that says that in figure AB, the sides AB, BC and CA of triangle ABC touch a circle with center O and radius R at P, Q and R respectively. You have to prove that AB plus CQ will be equal to AC plus BQ, and also area of this triangle will be equal to half of perimeter of this triangle into R. okay, so this is a circle with radius R and center O. okay, सो सबसे पहले हम पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं. इसका हम लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट लेते हैं. सो ए बी प्लस सी क्यू कैन बी रिटन एज, सी ए बी प्लस सी क्यू. ओके, तो ए बी कैन बी रिटन एज ए पी प्लस बीपी, ए पी प्लस बीपी, एंड दिस इज प्लस सी क्यू. ओके, अब देखो ए पी is equal to AR. Why? Two tangents from same external point will be equal to AP will be equal to AR. तो ये हो जाएगा AR plus BP will be equal to BQ. Same region. CQ will be equal to CR. Same region. Okay. और AR plus CR will be nothing but AC प्लस दिस इज बी क्यू. तो इजीली हमने ये प्रूफ कर लिया दैट ए बी प्लस सी क्यू विल बी इक्वल टू ए सी प्लस बी क्यू. अब चलते हैं सेकेंड वाले की तरफ. सो सेकेंड वन इज सेइंग ट्राइंगल ऑफ एबीसी एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल एबीसी विल बी इक्वल टू व्हाट. सी, this is a triangle, okay, and this is an inscribed circle which is been given. So let us draw. okay, so here this is the center O, this is A, this is B, this is C. okay, so area of this whole triangle will be nothing but area of this triangle plus area of this triangle plus area of this lower one, this triangle. yes or no? इन सबके तीनों की अलग अलग एरियाज को अगर हम जोड़ देंगे तो जो एरिया मिलेगी दैट विल बी द एरिया ऑफ दिस होल ट्राइंगल एबीसी. ओके, एंड एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ओए विल बी हाफ ऑफ बेस दैट इज ए बी इंटू हाइट. और इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट, सी यू कैन सी इन द क्वेश्चन, if this is O, so the height will be given by this distance, that is nothing but the radius of this circle. Is it clear? This will be the, see, this is a, this AB will be tangent, okay, and this OR will be radius, and this will be the height. okay, तो सिंपल सा हम ये बोल सकते हैं कि दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ आर इंटू ए बी प्लस हाफ ऑफ आर इंटू बी सी प्लस हाफ ऑफ आर इंटू सी ए. और यहां पे हाफ ऑफ आर कैन बी टेकन एज अ कॉमन, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए is nothing but the perimeter of this triangle. okay, तो ये मैं सीधे से बोल दूंगा हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटू आर, एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव. ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ये कहता है इन फिगर, तो फिगर हमारे पास ये है,
two circles touch each other at the point C, यहां पे इनका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, मतलब ये दोनों सर्कल टच कर रही है. सो प्रूव दैट द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल एट C बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट एट P एंड Q. मतलब P और Q पे जो टेंजेंट है दैट विल बी अगेन बेसिकली कॉमन ही है. ओके, तो इस टेंजेंट को, ये जो टेंजेंट है विल बाइसेक्ट. मतलब क्या कि PR विल बी इक्वल टू RQ. दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रूव. तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है. सी, this is an external point for this also, and these two are tangents for this, and these two are tangents for this circle. तो मतलब क्या कि मैं ये बोल सकता कि PR और RP is equal to RC. yes or no? let's say this is equation first. और यहीं से ये दोनों tangents भी हैं, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, तो RQ will be equal to RC. okay, let's say this is equation second. अब इन दोनों इक्वेशन का RHS वाला जो पार्ट है, लेफ्ट राइट हैंड साइड, दोनों बराबर है. तो मतलब क्या कि RP विल बी इक्वल टू RQ. मतलब ये हो गया कि R जो इसका मिड पॉइंट है, तो ये इजीली प्रूव हो गया कि दिस टेंजेंट विल बाइसेक्ट दिस टेंजेंट. यस और नो? ये हमने प्रूव कर दिया. सो हियर देयरफॉर R इज मिड पॉइंट ऑफ PQ. ये प्रूव हो गया. ओके, और ये हमको प्रूव करना था. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दैट सेज दैट लेट S डिनोट द सेमी पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का हाफ ऑफ अ ट्राइंगल ABC इन विच BC इज इक्वल टू A, CA B होगा, BC is equal to C if circle touches the side BA, CA and AB at DEF respectively. Let's say this is the triangle. Okay, ABC in which this, so पहले मार्क कर लेते हैं. तो AB जो BC है, ये let's say this is A, this is B and this is C. Okay, if a circle touches the side at DF respectively, so this circle is inside. Okay, side BC, CA and AB at DEF. तो BC को कहां पे टच करिए? D पे. ओके, एंड CA को E पे और इसको F पे. Okay, then prove that AF will be equal to AE will be equal to S minus A. इसकी लेंथ A है, A की लेंथ कितनी है? B है, स्मॉल b, और इसकी लेंथ है AB की C. Okay, so this is already given. और हमको प्रूव करना है कि AF विल बी इक्वल टू AE विल बी इक्वल टू S माइनस A. S क्या है? सेमी पेरीमीटर. ओके, तो सेमी पेरीमीटर है, तो मतलब क्या कि S की जो वैल्यू होगी A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2, ये होगी. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हियर देखो, दिस पेरीमीटर ऑफ दिस ABC, सी perimeter of okay, so I can say देखो ये this S by A, sorry 2, S by 2, okay, और simply say 2A, 2S. This 2S is perimeter. Okay, तो perimeter is nothing but sum of all the sides. तो मतलब क्या कि इसको मैं बोल सकता AB प्लस BC प्लस CA बोल सकता क्या? तो और AB क्या है? AB इज नथिंग बट AB AF प्लस FB, AF प्लस FB. सिमिलरली BC क्या है? BD प्लस DC, BD प्लस CD.
ओके और CA क्या है, CE प्लस EA प्लस CE प्लस EA। ओके तो यहां तक क्लियर है। अभी देखते हैं सी दिस AF, ये जो हमारे पास AF है, AF इज इक्वल टू AE, AF इज इक्वल टू AE, कैन वी से दैट, यस। और सिमिलरली जो BF है दैट इज इक्वल टू BD, कैन वी से दैट, यस। ओके क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है, ये दोनों टेंजेंट्स हैं, ये दोनों टेंजेंट्स हैं, बोथ विल बी इक्वल, बोथ विल बी इक्वल। बात आई समझ में? तो AF इज इक्वल टू AE, BF इज इक्वल टू BD। ओके और सिमिलरली ये जो CE है, CE this also can be written as CD, same reason, and AE can be written as this, AE can be written as AF, AE can be written as AF, और let us say we have to prove AF। तो ठीक है, AF को या तो इसको किसी को भी चेंज कर सकते हैं एज अ, इसको या तो AF में लिख दो या फिर इसको AE में। ओके तो ठीक है, मैं इसको AF में लिख दूंगा। ओके सो बेसिकली ये जो 2s है, 2s है, ये हो जाएगा 2s विल बी इक्वल टू AF। ओके मैंने इसको नहीं चेंज कर रहा, मैं AE को AF कर दूंगा। ओके तो AF प्लस ये क्या है BF, तो BF कैन बी रिटन एज BD, तो मैं इसको BD लिख दूंगा, BD, और BD प्लस CD तो ऑलरेडी था, तो BD प्लस CD को मैं कोई चेंज नहीं करूंगा। ओके सी इट केयरफुली, प्लस अब इसके बाद के जो दो टर्म्स क्या थे, CE प्लस EA, तो EA को मैं क्या करूंगा, AF लिख दूंगा बिकॉज दैट कैन बी रिटन, और CE इज नथिंग बट CD, तो मैं इसको चेंज करूंगा, तो यहां पे ये हो जाएगा प्लस CD प्लस AF। अब ध्यान से देखो, दिस 2s इज इक्वल टू AF, AF दो बार है तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ AF, प्लस ये BD और BD भी दो बार है और CD और CD भी दो बार है, तो ये बोले देता है 2 टाइम्स ऑफ BD प्लस CD। ओके BC CB प्लस CD। अब ये देख लो, ये BC, see here it is BD and CD, just a second, यहां पे ये हो जाएगा BD है ना, तो ये BD हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा BD। ओके एंड BD प्लस CD इज नथिंग बट BC, तो मैं यहां पे ये लिख देता 2s इज इक्वल टू 2AF प्लस 2BC, और BC की लेंथ कितनी है, A। ओके तो मतलब क्या कि 2s इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AF प्लस 2A। नाउ बोथ द साइड्स को, दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा S, इसको इधर शिफ्ट कर दो, माइनस A इज इक्वल टू AF, और AF AE के बराबर है ही, तो ऐसे ही हमने प्रूफ कर दिया दैट AF इज इक्वल टू AE विल बी इक्वल टू S माइनस A। ओके एंड सिमिलरली यू कैन ऑल्सो प्रूव कि BF और BD के इक्वल होंगे क्योंकि बोथ आर टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट B। Similarly, you can also prove कि it will be equal to S minus B, and also CD will be equal to S minus C. Okay? Okay. Now let us see the next question that says that if A, B, C are the sides of a right angle triangle, okay, right triangle you can also say, where C is the hypotenuse, okay, prove that the radius R of the circle which touches the sides of the triangle is given by R is equal to A plus B minus C divided by 2, or also you can say R is equal to S minus C, ये भी हम देखेंगे, where S is the semi perimeter of the triangle। okay now it is saying, let's say the triangle is this one,
Okay, and the circle is like this. Okay, and AB, C are the sides of a right angle triangle where C is the hypotenuse. So that means ये वाली जो side है इसका measure है C. Okay, so let's say this is vertex A, this is vertex B, this is vertex C. Okay, ये भी मान लेते हैं कि ये वाली अगर C है तो ये मान के चलते हैं कि let's say this is A और ये है B. ओके, इज इट क्लियर? अभी देखो, ओके, दैट इज व्हाट इट इज गिवन, दैट विच टचेस द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. सो ऑफ कोर्स ये इसको सभी ए बी, ए सी और बी सी को टच कर रहा है. नाउ यहां पे ध्यान से देखो, दिस इफ दिस पॉइंट्स आर, लेट्स से द ये वाला, लेट्स से दिस इज दैट इज नॉट गिवन. ओके, सो लेट्स से दिस इज ई, दिस इज, दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज एफ एंड दिस इज जी, let's say. Okay, so this is an external point, these BG and BC are two tangents. So by third theorem we can say that both the tangents will be of equal length. Okay, और ये जो सर्कल है इसका सेंटर O है और रेडियस इज R. ओके, तो देखिए इस वाले केस में दिस BG इक्वल्स टू BC, okay, and also for this point AC and AE are two tangents. Okay, so इस वाले केस में भी AC will be equal to AE, okay, and also CG will be equal to CE. बात आई समझ में? और अब देखिए this is 90 डिग्री क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है. ओके, और देखिए वी ऑलरेडी नो कि ये जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये वाला एंगल है ये भी 90 डिग्री का होगा. ओके, और अगेन ये वाला भी होगा 90 डिग्री का, मतलब सीधी सी बात है ये वाला भी 90 डिग्री का होगा. एंड टू एडजेसेंट साइड्स दैट इज OE एंड OG आर इक्वल, मतलब ये कि ये OECG इज अ स्क्वायर. तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो CG की वैल्यू होगी, CG की वैल्यू होगी दैट विल बी R. ओके, एंड वैल्यू ऑफ EC, CE विल ऑल्सो बी इक्वल टू R. ओके, तो यानी कि ये जो दोनों, ये जो CE और CG है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? R. ओके, अब देखिए ये जो BG है, दिस BG will be equal to how much? BG will be equal to BC that is A minus CG that is R. तो ये BG की वैल्यू कितने हो जाएगी? A minus R. BG की वैल्यू हो जाएगी A minus R. Is it clear? अब देखिए यहां पे सी, तो ये हो जाएगा इतना, और दिस BG is equal to BC. तो मतलब क्या कि BC will be equal to A minus R. बात आ गई समझ में? BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? A minus R. अब देखिए इस वाले केस में, here the length of AC is B और CE कितना है? R. ओके, तो मतलब क्या कि AE will be equal to this total length that is B minus R. तो यहां मैं लिख सकता हूं इसको B minus R. ओके, और यहां पे भी सेम रीजन, दिस AE, सॉरी, दिस AE will be equal to AC. यस और नो? तो मतलब AC की भी जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी, देयरफॉर AC will be equal to B minus R. ओके, अब देखिए दिस AC प्लस BC इज इक्वल टू, ये AC हो गया B माइनस R और BC हो गया A माइनस R. तो AC प्लस BC विल बी A प्लस B माइनस 2R.
Is it clear? And AC plus BC is nothing but this AC plus BC is nothing but AB. Okay, this is AB which is equal to A plus B minus 2R, और AB की वैल्यू कितनी है? AB की वैल्यू है C, तो मतलब क्या किया हो जाएगा? C इज इक्वल टू A प्लस बी माइनस 2R, इसको इधर लेके आओ, C को यहां पे, तो 2R विल बी इक्वल टू A प्लस बी माइनस C, देयरफॉर R विल बी इक्वल टू A प्लस बी माइनस C डिवाइड बाई 2। ये हो गया प्रूफ। अब देखो वो जो सेकेंड वाला था, तो उसके लिए क्या करेंगे? यहां पे +1 करेंगे और -1 करेंगे, दैट मीन दिस R कैन बी रिटन एज A प्लस बी माइनस C डिवाइड बाई 2 +1 -1। ओके, तो ये हो जाएगा A प्लस बी माइनस C प्लस 2C। ओके, और ये हो जाएगा C। हियर इट विल बी see this will be A, R will be equal to, see this is what, A plus B minus C, okay, this will be plus 2C, sorry here C को ऐड करो और C को सब्ट्रैक्ट करो, okay, C प्लस एंड माइनस C, ये हो जाएगा प्लस 2C। ओके, ये हो गया, ये जो ये वाला, और प्लस C विल बी प्लस 2C डिवाइड बाई 2 और माइनस C ये वाला, तो ये हो जाएगा A प्लस बी प्लस C डिवाइड बाई 2, दैट इज सेमी पेरीमीटर, तो ये हो जाएगा S माइनस C। तो यहां से हमने ये भी प्रूव कर लिया कि R विल बी इक्वल टू S माइनस C। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दैट इज ABCD is a quadrilateral such that angle D is equal to 90 degree. Okay, and a circle C, center is O and radius is R, touches sides AB, BC, CD and DA at PQ, R and S respectively. If BC की वैल्यू इतनी है, CD की वैल्यू इतनी है and BP is equal to this centimeter, find the value of R. Okay, तो सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। सो यहां पे ये बोल रहा है कि ABCD क्वाड्रिलेटरल है और जो एंगल D है वो है 90 डिग्री। तो मतलब क्या कि लेट्स से दिस इज D और ये 90 डिग्री का है, और मान लेते हैं कि ये कोई है ऐसा है, फॉर एग्जांपल कुछ भी ले सकते हैं। तो लेट्स से कि दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C और ये हो गया D, and a circle touches the sides, all the sides at PQ, R and S। तो मैं ऐसे एक सर्कल बना लेता, sorry this circle is not accurate but you can visualize। so this is touching AB को कहां पे? P, तो AB ये है P, BC को Q पे, Q, R and S। ओके, इन सभी चारों पॉइंट्स पे ये इंटरसेक्ट कर रही है। नाउ व्हाट इट इज गिवन दैट BC इज इक्वल टू 38, इसकी वैल्यू दी रखी है 38। ओके, और CD की वैल्यू दे रखी है, CD की वैल्यू कितनी दे रखी है? 25, और BP इसकी वैल्यू दे रखी है 27। ओके, नाउ यू ओनली टेल मी, इसकी वैल्यू दे रखी है 27, दिस इज अ एक्सटर्नल पॉइंट, और यहां से दो टेंजेंट BQ और BP ड्रॉ करे गए। मतलब क्या कि BP की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू BQ, यस और नो? तो मैं ये बोल सकता है कि ये जो लेंथ है, दिस BP will be equal to 27, this is already given, and this will be equal to BQ। ओके, अब यहां से एक चीज ये देखो कि दिस CB is equal to CQ plus QB, CQ plus QB। ओके, और BC और CB की वैल्यू कितनी दे रखी है? 38। तो मतलब क्या कि देयरफॉर 38 इज इक्वल टू CQ प्लस QB जो कि है 27। सो दैट मीन्स कि CQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 38 माइनस 27, ये हो जाएगा 11। तो मतलब क्या कि इसकी जो वैल्यू है
दैट इज 11, तो डेफिनेटली दिस इज एक्सटर्नल पॉइंट, ये दोनों टेंजेंट्स हैं, तो इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 11 सेंटीमीटर। यूनिट्स हमेशा लिखना, ओके जो भी यूनिट्स दिया रहेगा यूनिट्स को कहीं मत छोड़ना। ये हो गया इसका। एंड नाउ यू कैन सी, देखो CD इज गिवन एज 25 एंड CD इज इक्वल टू CR प्लस DR। ओके, मतलब क्या कि DR की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 माइनस 11, DR विल बी इक्वल टू 25 माइनस 11 जो हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? इसकी वैल्यू 14, अगेन सेम लॉजिक सेम रीजन, DR विल बी इक्वल टू DS क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट है और ये दोनों टेंजेंट्स हैं, तो इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। बात आई समझ में? और यहां पे देखो ये है सर्कल, इसका सेंटर O और ये है इसका रेडियस। हमने इसके पहले क्वेश्चन में देखा था कि इफ दिस इज 90 डिग्री, देखो ये दोनों रेडियस हैं तो ऑफ कोर्स ये भी होगा 90 डिग्री और ये भी होगा 90 डिग्री, तो बचा हुआ डेफिनेटली दिस विल आल्सो बी इक्वल टू 90 डिग्री। एंड दिस इज R, मतलब ये वाली साइड और इसके जस्ट बगल वाली साइड आर इक्वल, सो दैट मींस दिस ORDS इज अ स्क्वायर। तो मतलब क्या कि ये जो 14 है इसके OS के बराबर होगा, मतलब क्या कि जो रेडियस है दैट विल बी इक्वल टू दिस DR जो कि हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। बात आ रही समझ में? ये कैसे स्क्वायर होगा कि देखो, क्योंकि ये 90 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ है और ये दोनों रेडियस हैं जो कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर होते हैं हमने ऑलरेडी देखा है, तो ये भी 90 ये भी 90 हो जाएगा और सभी सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स विल बी इक्वल टू 360, तो कॉमन सेंस से ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। और इसके ये जो दोनों बगल वाले जो दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं इन द ORDS क्वाड्रिलेटरल के दोनों बराबर है, मतलब क्या कि डेफिनेटली दिस क्वाड्रिलेटरल विल बी अ स्क्वायर। अगर स्क्वायर है तो इसके सामने वाली ये जो साइड है DR दैट विल आल्सो बी इक्वल ना, तो इसीलिए रेडियस विल बी 14 सेंटीमीटर। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दैट इज फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, ओके एक एक्सटर्नल पॉइंट P है, टू टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू द सर्कल विथ सेंटर O, ओके, एंड यू हैव टू प्रूव दैट OP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। तो देखो ये हमारे पास एक सर्कल है, ओके, और इसका सेंटर O है, ओके, और एक एक्सटर्नल पॉइंट P से टू टेंजेंट, मान लो ये हमारा P है और दो टेंजेंट PA, तो मान लेते हैं कि ये ऐसे है PA और एक PB, ऐसे PA और PB दो टेंजेंट्स हैं एंड ड्रॉन विथ सेंटर O, प्रूव दैट OP, मतलब कि ये वाली लाइन, जस्ट अ सेकेंड इसको थोड़ा और सेंटर में कर लें, लेट्स से ये वाली पॉइंट है सेंटर O, OP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, मतलब कि इसको मैं अगर ज्वाइन करूं, सो ये जो लेट्स से दिस इज C, तो ये जो एंगल है ना ये 90 डिग्री हो और AC की वैल्यू CB के बराबर हो। बात आ रही है समझ में? तो इसको भी एक बार ज्वाइन ही कर लेते हैं, ओके। अभी देखो इसको प्रूव करने के पहले अगर हम ये प्रूव कर लें कि ये CBP और CAP दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो क्या मैं ये बोल सकता क्या कि ये दोनों साइड्स, मतलब ये AC और CB विल बी इक्वल? यस, हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो एंगल बनेगा दोनों एंगल ये भी हो जाएगा इक्वल, ये तो बोल सकते हैं। सो सबसे पहले मैं ये प्रूव करूंगा कि ये बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो मैं यहां पे ये लिखूंगा इन ट्रायंगल CAP, जस्ट अ सेकेंड, इन ट्रायंगल CAP एंड ट्रायंगल CBP। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो this AP will be equal to PB, why? Two tangents from same external point, तो यहां पे ये बोल सकता है कि AP will be equal to
बीपी, और रीजन में ये लिख सकता है कि सेम टेंजेंट्स फ्रॉम, और नॉट सेम, टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। तो ये हो जाएगा टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। ओके, बात आई समझ में। और ये ओ जो सीपी है, सीपी इज कॉमन, ओके। और क्या हम ये बोल सकते हैं क्या कि ये ए पी सी विल बी इक्वल टू बी पी सी? यस, हम ये भी बोल सकते हैं। देखो ये मैं ऐसे प्रूव भी कर सकता, और ये ऑलरेडी देखिए, जैसे मान लेते हैं कि अगर ये वाले जो अगर ट्रायंगल रहता, फॉर एग्जांपल देखो मैं प्रूव कर दे रहा हूं कि ये कैसे ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, और ये ऐसे सिचुएशन बनेगी, फॉर एग्जांपल ये हो जाएगा ओ, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा बी। ओके, अब देखो अगर इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे तो ये दोनों तो हो गए रेडियस, ओके, और ये दोनों हो गए टेंजेंट। तो मतलब क्या कि ये भी बराबर हो जाएगा, ये भी बराबर हो जाएगा, और ये वाली साइड कॉमन है। तो बाय एसएसएस क्राइटेरियन ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। मतलब क्या कि दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस। और इसीलिए मैं ये बोल रहा हूं कि एंगल ए पी सी, एंगल ए पी सी विल बी इक्वल टू एंगल बी पी सी। और ये कैसे एंगल प्रूव, ये दोनों एंगल कैसे बराबर होंगे, ये मैंने ऑलरेडी यहां पे किया। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि सी दो साइड्स इसके बराबर है, तो वो वाली ये है, ये और ये वाली साइड कॉमन है, और ये वाले एंगल बराबर है। मतलब बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरियन these two triangles are congruent. So therefore triangle CAP is congruent to triangle CBP. ओके, और ये कैसे? साइड, ओके, एंगल साइड क्राइटेरिया। ओके, तो मतलब ये कि देयरफॉर AC विल बी इक्वल टू CB, तो दैट मींस OP इज बाइसेक्टिंग दिस AB, और एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल BCP। बात आ रही समझ में? अब देखो ये जो एंगल ACP प्लस एंगल BCP इज इक्वल टू हाउ मच? देखो यहां पे एंगल ACP प्लस एंगल BCP इज इक्वल टू हाउ मच? 180 डिग्री, लीनियर पेयर है बेसिकली, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। एंड नाउ सिंस बोथ द एंगल्स आर इक्वल, मतलब क्या कि एंगल ACP विल बी इक्वल टू एंगल BCP विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। Okay, therefore it is proved that OP is perpendicular bisector of AB. Okay, now the next question is two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T, and you have to prove that PTQ will be equal to twice of angle OPQ. Okay, तो हमारे पास एक सर्कल है, ठीक, with center O, so let's say this is center O and there is external point T, and यहां से दो tangents ड्रॉ करे गए, those are TP and TQ. okay, okay, and we have to prove that PTQ मतलब ये वाला एंगल will be equal to twice of angle OPQ. okay, now see these two tangents will be equal because they are passing from the same external point, and these two are, see, we already know from the third theorem that if you will draw two tangents from external point on the circle, lengths of both the triangle will be, sorry, tangent will be equal. okay, तो that means कि TP will be equal to TQ. okay,
अब देखो दिस ट्रायंगल टी पी क्यू, ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होगा? आइसोसीलस ट्रायंगल, क्योंकि इसमें दो साइड्स बराबर है, तीसरा वाला ऑफ डिफरेंट लेंथ। तो मतलब क्या कि ट्रायंगल TPQ इज एन आइसोसीलस ट्रायंगल, देयरफॉर आई कैन से कि एंगल TPQ प्लस एंगल TQP एंगल TQP प्लस एंगल PTQ will be equal to 180 degree. Yes or no? Okay. Now this angle, see these two triangles OTP and OTQ are congruent. ओके हमने पहले भी देखा है। तो मतलब क्या कि ये जो दोनों एंगल्स होंगे PTO और QTO वो दोनों इक्वल होंगे। तो मैं यहां पे ये बोल सकता हूं कि this will be, both the angles will be equal, so I can say that angle PTQ will be equal to 180 minus twice of angle TPQ. Yes or no? ये दोनों इक्वल होंगे, तो मैंने इसको भी ले लिया एंगल TPQ और मैंने इसको राइट हैंड साइड में कर दिया। नाउ आई विल डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 2, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल PTQ, दिस इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल TPQ, एंगल TPQ, ये वाले एंगल। ओके, नाउ इन ट्रायंगल OTP यू कैन से, इन ट्रायंगल OTP, ओके देखो हमारे पास ये सर्कल था और एक पॉइंट T थी और यहां से दो टेंजेंट्स ऐसे ड्रॉ करे गए थे, TP और TQ, और ये था हमारा, मान लेते हैं सेंटर, और ये PQ और ये OQ। ठीक, तो इस वाले जो ट्रायंगल, ये जो ऊपर वाला बनेगा, इसमें सम ऑफ दिस एंगल प्लस सम ऑफ प्लस लाइक दिस एंगल OPQ विल बी इक्वल टू हाउ मच? देखो दिस रेडियस विल बी परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट TP। ओके, तो मतलब क्या कि इन ट्रायंगल OTP आई कैन से दैट एंगल TPQ प्लस एंगल OPQ will be equal to how much? 90 degree. Okay, therefore angle TPQ is equal to 90 minus angle OPQ। अब इसी को एंगल TPQ की वैल्यू को ये वाले जो इक्वेशन हमको मिला है इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो दैट मीन्स हाफ ऑफ PTQ विल बी इक्वल टू, therefore half of angle PTQ will be equal to 90 minus angle OPQ। ठीक, तो 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, एंगल PTQ will be equal to twice of angle OPQ। Okay, hence it is proved that this angle PTQ will be equal to twice of angle OPQ। Okay, now let us move to the next question, so that is PQ। देखो PQ is a chord of length 8 centimeter of the circle of radius 5 centimeter, the tangents at P and Q इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट T। मतलब कि T एक एक्सटर्नल पॉइंट है और TP और TQ दो टेंजेंट्स हैं। ओके, यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ TP। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं, तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये सर्कल है और ये वाला पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है T, और ये दो टेंजेंट्स हैं ऐसे TP और TQ। ओके, और मान लेते हैं ये हमारे पास सेंटर O है। ओके, एंड इट इज सेइंग दैट द रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। मतलब क्या है कि ये इन दोनों की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर। ओके, और ये बोला गया है कि PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। मतलब PQ इज अ कॉर्ड हुज लेंथ इज 8 सेंटीमीटर। अब देखो हमने इसके पहले क्वेश्चन में देखा था दैट दिस OT विल बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द
पी क्यू, यस और नो? तो मतलब क्या कि अगर ये पी क्यू 8 है तो ये, अगर इफ दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज सी, तो पीसी की वैल्यू 4 हो जाएगी और सी की वैल्यू भी 4 हो जाएगी, बिकॉज दिस ओटी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। ओके, तो दैट मीन्स दिस इज 90 डिग्री और ये दोनों साइड्स हैं और पीसी विल बी इक्वल टू सी क्यू। अब देखो ये ट्राइंगल ओ पी सी कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब क्या है कि मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता। तो दिस ओसी विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। ओके, अब ध्यान से देखो, हमारे पास एक ऐसा ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल बेसिकली, ऐसे और एक ऐसे बनेगा, जिनमें से इसकी वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, एंड लेट अस एज्यूम कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस है y सेंटीमीटर एंड दिस डिस्टेंस इज x सेंटीमीटर। ठीक, हम ये मान लेते हैं कि दिस डिस्टेंस इज x सेंटीमीटर और यहां से यहां तक की डिस्टेंस y सेंटीमीटर है। ठीक, अब देखिए अगर हम इस वाले ट्राइंगल की बात करें, दैट इज ऑफ टी पी और सी की, ये सी है, इस ट्राइंगल की बात करें तो दिस इज बेस, पीसी इज परपेंडिकुलर दैट इज ऑफ 4 सेंटीमीटर और पीटी है हाइपोटेनस। तो मतलब ये कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 16, यही तो होगा ना? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इस वाले ट्राइंगल से हमको ये रिलेशन मिल गया। अब देखते हैं ये वाले ट्राइंगल में, देखो ये रेडियस है, तो ऑफ कोर्स दिस विल बी टेंजेंट, दिस विल बी परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट। तो मतलब क्या कि ये जो एंगल होगा वो हो जाएगा 90 डिग्री का। बात आ रही समझ में? और अगर ये 90 डिग्री का हो जाएगा तो ये बड़े वाले ट्राइंगल में दिस टी और ये हमारा क्यू था, तो दिस टी ओ विल बी योर हाइपोटेनस। ओके, तो मतलब क्या कि इस वाले ट्राइंगल के लिए हम बोल सकते हैं y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, तो अभी हम इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y एंड दिस इज इक्वल टू 25 प्लस, अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 16। ओके, अब देखो ये जो दोनों टर्म्स यहां भी है यहां भी है, तो ये दोनों हो जाएगा कैंसिल और 6y विल बी इक्वल टू 25 प्लस 16 विल बी 41 माइनस ये वाले को 9, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 32। ओके, देयरफॉर वैल्यू ऑफ y विल बी 32 डिवाइड बाय 6, तो ये हो जाएगा 16/3 सेंटीमीटर। ओके, यानी कि ये जो टी वाई की वैल्यू यानी कि ये टीसी की वैल्यू हमको आ गई, दैट इज 16/3 सेंटीमीटर। ओके, फिर से हम वही पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये टीपी की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं, तो टीपी स्क्वायर विल बी यस, तो टीपी स्क्वायर इज इक्वल टू, दैट वाज हाइपोटेनस, ये जो टीपी है हमारे पास, सी जस्ट अ सेकेंड, this TP is hypotenuse of this triangle PTC. So that means TP square will be equal to 4 square plus y square और y की वैल्यू 16/3, तो TP square will be equal to 16 plus 16/3 होल स्क्वायर। ओके, अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 16 प्लस 256 डिवाइड बाई 9, ये हो जाएगा डिनो एलसीएम विल बी 9, 9 6 54, तो 4 विल बी हियर, कैरी 4, 9 1 9 4, 9 5 14 और ये हो जाएगा प्लस 256, तो ये फाइनली हो जाएगा 400 डिवाइड बाई 9। ओके, देयरफॉर टीपी विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस टर्म दैट इज 20/3
सेंटीमीटर। ओके, तो वो जो टेंजेंट था टीपी और टीक्यू दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20/3 सेंटीमीटर। ओके, चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यस, so you have to prove that the angle between two tangents drawn from an external point to a circle, okay, is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at center। तो मतलब ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास एक सर्कल हो जिसका सेंटर O हो, ओके, द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास P एक्सटर्नल पॉइंट है और ये A है और ये है B। सो यू हैव टू प्रूव दैट दिस is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at center। मतलब ये और ये एंगल का एडिशन शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमको प्रूव करना है। ओके, ठीक, अभी देखिए नाउ यू कैन सी क्लियरली कि दिस, इफ आई विल टेक दिस टू ट्रायंगल्स, तो ये साइड इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, एंड दिस OP इज कॉमन। So that means by SSS criterion these two triangles are congruent। okay, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि ट्राइंगल OAP is congruent to triangle OBP। okay, therefore angle APO will be equal to angle BPO। ओके, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, एंड एंगल AOP विल बी इक्वल टू एंगल BOP। ओके, बात आ रही समझ में? दिस एंगल APO विल बी इक्वल टू एंगल BPO। ओके, अभी देखिए, अभी ये दोनों एंगल्स इक्वल है, मतलब क्या कि देयरफॉर एंगल दिस एंगल APB, एंगल APB, see what we have to prove। okay, so this, so angle APB, देखो, if I will add these two, let's say this is equation 1, this is equation 2, okay, so if you will add these two equations, angle APO and angle AOP, ठीक है, so just a second, yes, okay, okay, see, now in triangle OAP, this angle APO in triangle OAP, okay, this angle APO is equal to angle APO is equal to angle this 90 minus angle AOP। यस और नो? देखो, इसका एंगल प्लस ये एंगल प्लस दिस 90 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल AOP प्लस एंगल APO विल बी इक्वल टू एंगल 180 माइनस 90, दैट इज 90 डिग्री। तो मैंने ये एंगल AOP को डायरेक्ट राइट साइड में शिफ्ट कर दिया है। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 2। ओके,
तो ये हो जाएगा देयरफॉर 2 टाइम्स ऑफ एंगल APO विल बी इक्वल टू 180 माइनस एंगल 2 टाइम्स ऑफ AOP, मतलब इसके 2 टाइम्स ऑफ एंगल AOP, जस्ट अ सेकेंड, एंगल AOP, ओके। और हमने जस्ट देखा था कि दिस इज, इफ दिस इज एंगल ट्वाइस ऑफ APO, तो ट्वाइस ऑफ APO का मतलब क्या होगा, देखो APO मींस APO प्लस APO, एंड नाउ हमने यही देखा है कि APO इज इक्वल टू एंगल BPO, ओके। तो मतलब क्या कि मैं यहां पे ये लिख सकता हूं, देखो एंगल APO प्लस एंगल APO is equal to 180 minus same thing angle AOP minus angle AOP, okay. And this angle APO, one APO, I will write it as angle BPO, okay, and I will write it as it is. This is equal to 180 minus, और एक वाले को मैं लिख देता हूं एंगल BOP, एंड एक को मैं as it is लिख देता हूं, okay. Now this is equal to summation of this is angle APB, and this is equal to 180 minus, if you will take minus 1 as a common, so summation of angle BOP and angle AOP will be angle AOB. तो मतलब क्या कि एंगल APB प्लस एंगल AOB is equal to 180 डिग्री, ओके। एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रूव कि ये जो दोनों एंगल हैं, दीज टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब क्या कि एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस.